Hmm. Today's lecture topic is thalamus. So, thalamus is a part of diencephalon. All of you should refer the diagram of development of neural tube. In neural tube, we have three parts. What are the names? Simple. As you remember, any guess? It is forebrain, midbrain, and hindbrain. If you have a textbook, you can see first chapter, see the diagram of development. Okay, so forebrain, midbrain, and hindbrain, these are the three enlarged vesicles of the neural tube. Out of them, we will have subdivisions. Forebrain gives rise to telencephalon and diencephalon. Midbrain gives rise to our midbrain in the brainstem. Hindbrain gives rise to medulla pons and cerebellum. Again, forebrain divides in telencephalon and diencephalon. Midbrain and hindbrain gives rise to medulla, pons, and cerebellum. So there are another names of these three cavities. Forebrain is called prosencephalon. Midbrain is called mesencephalon. And hindbrain is called rhombencephalon. Rhombo means diamond-shaped cavity of fourth ventricle. So prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. These are the three primitive neural tube cavities, vesicles. Okay. Uh, so we are going to learn diencephalon. That is, it is a part of forebrain. That is prosencephalon. Prosencephalon gives rise to telencephalon and diencephalon. And telencephalon develops enormously like umbrella. It covers everything and it gives rise to large cerebral hemisphere. Cerebral cortex is a derivative of telencephalon, part of forebrain or prosencephalon. Okay. So diencephalon is buried inside the whole large tree of telencephalon. So that buried portion is this one. Okay, you can see this is sagittal section of the whole brain. This is medulla, this is pons, and this is midbrain. And ventrally here, this whole area above your midbrain is your diencephalon. Okay, and in front of this diencephalon, this large mass is covered by white matter and gray matter of telencephalon. That is your forebrain, that is your cerebral cortex. So beyond deep to this large cerebral cortex and white matter, we have this buried portion, that is diencephalon. So which are the parts of diencephalon? Pars dorsalis and pars ventralis. So this is dorsal part of diencephalon, and this is ventral part. And these two are divided by a hypothetical, a faint sulcus. That name of the sulcus is hypothalamic sulcus. See here, this is your hypothalamus, this is thalamus, and in between there is this hypothalamic sulcus. It marks the boundary between ventral and dorsal part of diencephalon. Right? Now we are going to learn thalamus today. Okay? With this name you have so many structures. We will just take a review. Thalamus, epithalamus, metathalamus, subthalamus, and hypothalamus. Again, thalamus, epithalamus, metathalamus, subthalamus, and
hypothalamus. So out of these are the two larger masses, thalamus and hypothalamus. They are larger from among all. Okay. So we are starting with this thalamus. It is a large ovoid or egg shaped mass of gray matter. It is large egg shaped or ovoid mass, two side, right and left side. So in this section we are seeing right side. Okay. And if you want to see sagittal, okay, this is sagittal view. If you want to see coronal or vertical view, this is coronal section. So this is a large egg shaped thalamus. Okay, this is right side, this is left side. We are viewing from posterior side. We are viewing this from posterior side. So you can see this is dorsal part of midbrain, corpora quadrigemina. It is pair of two superior and two inferior colliculi can be seen. So it is pair of these colliculi. In between there is hanging projection in the median plane, that is your pineal gland. This pineal gland is having upper and lower connection. Okay, upper connection is known as habenular commissure and lower one is known as posterior commissure. We will see in epithalamus. So epithalamus contains your pineal gland and its attachments. Metathalamus contains these four structures, corpora. Okay, and subthalamus is between this whole complex and thalamus. In between this and this, somewhere here in the this depression is your subthalamus. And subthalamus is connected directly to your basal nuclei. They are forming one complex. Subthalamus and basal nuclei having one single large complex. Okay. So if you want to see the boundaries, this is ventral boundary forming hypothalamic sulcus. Somewhere here you will have this connection between two lateral ventricles and beginning of third ventricle. So it is interventricular foramen of Monro. So this area represents connection between two right and left lateral ventricle. And anterior to this interventricular foramen you will have this septum pellucidum, lamina terminalis and anterior commissure. This large one is lamina terminalis. It is marking anterior most boundary of the developing neural tube. Okay, when neural tube develops, this is the most projecting part. और उसके बाद आगे पीछे सब ग्रो हो जाता है तो ये ढक जाता है. ठीक है. So this is anterior commissure, lamina terminalis and mammillary body. Somewhere here you will have optic tract. This is your optic tract, and here you have this pituitary gland or hypophysis cerebri. And if you go still behind, you will have mammillary body, and from mammillary body behind there is posterior perforated substance, and from mammillary body connection goes to anterior nucleus of thalamus somewhere here. It is called mammillothalamic tract. And these two thalami are connected by interthalamic adhesion or interthalamic connection. So it is joining these two thalami. You can see here also this right thalamus and left thalamus, they are connected by interthalamic adhesion. So if you take strictly vertical section exactly passing in the median plane, then you will have this connection. Okay. If you still go upwards, there is septum pellucidum overhanging from lower part of corpus callosum. If you still go upwards, above corpus callosum you will find falx cerebri, median plane of dura mater dividing two cerebral hemisphere. So here there is falx cerebri, then corpus callosum, then septum pellucidum, and then you have this cavity.
this large cavity below septum pellucidum and between right and left thalamus, this large cavity is known as third ventricle. So remember, this is your third ventricle. And these two are your lateral ventricles, anterior horn of lateral ventricle. They both are coming from right and left side. Here, inter ventricular foramen of Monro, they are connected. They are forming, terminating in single large cavity, that is your third ventricle. And you remember fourth ventricle. From this third ventricle, if you still go downwards, here you will have central canal and your fourth ventricle, rhomboid shaped cavity. Okay. So you should know the connections of all ventricles to when we see the ventricles, you will remember all these relations. So as soon as you learn thalamus and related structures, you should immediately read third ventricle and its boundaries. So we will cover in next part. This is stria terminalis. It is a band of white matter, and this is your thalamostriate vein. One artery is also there, that is known as thalamo-geniculate artery. So you should remember three names. We will learn stria terminalis, thalamostriate vein, and thalamo-geniculate branch of cerebral artery. So which are the surfaces and borders? So if you imagine this as an egg, you will have medial surface, lateral surface, superior surface, inferior surface, okay, then anterior end and posterior end. Again, medial surface, lateral surface, upper surface, lower surface, anterior end, posterior end. So now we will again subdivide this whole structure. Now the names of the nuclei, names of the parts of thalamus is very tough to remember, and the nomenclature is little bit confusing. You should carefully focus when we learn nuclei. But before that, you should have orientation of this. Okay. One similar name, stria terminalis. Similar name is inside a white shaped band of white matter dividing thalamus. That is called internal medullary lamina or stria habenularis. This is same sagittal section. See, this is band of fibers, connections. Okay, this connection is called stria medullaris thalami. That means this is a large mass of thalamus. You can see it divides the thalamus in centrally, in between or inside. Okay, this dividing mass inside is called stria medullaris thalami. It is medulla, that is inside this whole large mass. The mass which is running on superior surface, this connection goes on superior surface is called stria terminalis. It runs along with thalamostriate vein. Okay, so this is stria terminalis, and this mass which is inside, it is called stria medullaris thalami. One more reference, remember dorsal surface of brainstem. Let's open if we have. These very similar names should immediately refer if available. This is dorsal view of brainstem. Okay, so here you have fibers coming from inside and going laterally. This is called stria medullaris.
इसका नाम ही मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, तो इसका नाम हुआ स्ट्राया मेड्यूलारिस प्लेन. ओके, ओनली स्ट्राया मेड्यूलारिस. But if you add here the word thalami, stria medullaris thalami, then it becomes this thing, stria medullaris inside thalamus. It is stria medullaris thalami. It is bundle of white matter afferent connection of habenular nucleus in epithalamus. Okay, it is called stria medullaris thalami. And one of the fibers group which is running on superior surface of thalamus is called stria terminalis. अब इसका नाम क्या था? एंटीरियर कमीजर से ये जो नीचे जा रहा है, इसका नाम था लेमिना टर्मिनालिस. ओके, सो नेम्स ऑफ ऑल फोर टुगेदर: लेमिना टर्मिनालिस, स्ट्राया मेड्यूलारिस थैलेमी, स्ट्राया मेड्यूलारिस ओनली, and stria terminalis. These all four structures you should write somewhere nearer and revise them together so that you don't confuse. In Viva, these are the favorite questions of examiner to ask. Okay, now let's just have an overview of asli cheese. Okay, superior view of thalamus. Remember earlier diagram, उसमें से हमने सिर्फ इतना निकाला है. दिस इज राइट थैलेमस, दिस इज लेफ्ट थैलेमस. If you divide thalamus with white matter, it is internal medullary lamina. This is dividing thalamus in three broad zones: anterior group, medial group, and lateral group. Yellow color, anterior group; blue color, medial group; red color, lateral group. In final exam, when you start writing, these are the only thing you start to remember, and sometimes you remember only this thing and you forget everything else. So anterior group, medial group, and lateral group, very simple. Now let's make it difficult. Anterior group does not have any subnuclei. It is anterior nucleus, just anterior nucleus. Medial group has two subdivision, median and medial. Median is strictly median in the center, sagittal plane, and medial is little bit lateral to median. कुछ लोग समझेंगे. So median and medial group, these are the two subdivisions of medial group of thalamic nuclei. Anterior group has anterior nucleus. Medial group is divided in median and medial nuclei. These two are connected by interthalamic adhesion, as you remember. Now lateral group is divided broadly by this vertical line and this horizontal line. So you should draw them little bit thicker, this vertical line and this horizontal line. This part is known as pulvinar. Pulvinar is most posterior end of thalamus. Okay, so this is lateral group, this is ventral group. You can see V as a common name in all. So this is ventral group and this is lateral group. Now don't go by directions, this is whole bunch, collection or complex. Okay, so इसके नाम का मीनिंग निकाल के इसकी डायरेक्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके नाम को ही पकड़ना है. यहाँ तक ठीक है, इंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल, यहाँ तक डायरेक्शन ठीक है. बट लेटरल के अगर आप डिवीजन करते हो तो उसमें डायरेक्शन के हिसाब से नहीं जाना है, इसको सिर्फ मगअप करना है, याद रखना है, दैट्स इट.
So this lateral group is subdivided in ventral group, lateral group, and posterior group. Posterior one is known as pulvinar. Ventral group has three division: ventral anterior, ventral lateral, and ventral posterior. Again, ventral anterior, ventral lateral, and ventral posterior. Lateral group, two division: lateral dorsal and lateral posterior. फिर से ये पूरे को हमने नाम दिया lateral group. Lateral group is divided in ventral, lateral, and posterior or dorsal. Okay. Ventral is subdivided in ventral anterior, ventral lateral, and ventral posterior. Lateral is subdivided in lateral dorsal and lateral posterior. अब कुछ दूसरी तरीके से देखते हैं. This is only left thalamus. ध्यान से देखो, पहले डायग्राम में से जो दो हमने देखे उसमें से यू डिटैच लेफ्ट वन और उसको वी आर सीइंग फ्रॉम पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर लेटरल व्यू, oblique व्यू. Only left. Focus only on left thalamus. So this is your Y-shaped internal medullary lamina. For proper understanding, we have cut a little piece. इसको हमने यहाँ से अलग कर दिया है. रियलिटी में ये इसके साथ चिपका होता है, तो आपको इसको चिपका के ही समझना है. यहाँ पे सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम है. तो पहले से शुरू करते हैं. जिसको नहीं समझ आया वो ध्यान रखें. एंटीरियर ग्रुप, medial group, and lateral group. Anterior group only one nucleus, anterior nucleus. Medial group दो nuclei, median and medial. तो median is midline nuclei. Median nucleus is also called midline nucleus. और उसके लेटरल साइड वाला इट इज कॉल्ड मीडियल डोर्सल. मीडियल के दो भाग कौन से? मीडियन और मिडलाइन और मीडियल डोर्सल, एमडी. अब से हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसकी डायरेक्शन आपको इमेजिन कर लेनी है. इस पूरे डायग्राम को बार बार देखिए और फिर बिना देखे बोलने की कोशिश करिए. एवरी नेम यू शुड बी एबल टू स्पीक, क्योंकि इसके कनेक्शन हम करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी. तो इसके दो भाग हो गए. अब यहाँ पे आइए. लेटरल ग्रुप. लेटरल ग्रुप के दो टुकड़े. दिस इज वेंट्रल ग्रुप एंड दिस इज लेटरल ग्रुप एंड दिस इज पोस्टीरियर ग्रुप. वेंट्रल ग्रुप, लेटरल ग्रुप एंड पोस्टीरियर ग्रुप. वेंट्रल ग्रुप इसके तीन पार्ट: वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लेटरल एंड वेंट्रल पोस्टीरियर. इस पूरे को नाम देंगे वीपी. वीएल एंड वीपी. ओके. पोस्टीरियर को नाम दे दिया पल्विनार और उसके नीचे है अपने दो फेमस एमजीबी, एलजीबी. यहाँ पे अपना मिड ब्रेन आ चुका है. चलिए अब लास्ट पीस वी वेंट्रल लेटरल. यहाँ पे कभी कभी दो टुकड़े होते हैं वी आई, दैट इज वेंट्रल इंटरमीडिएट, पर हम इसको इजी बनाए रखेंगे. इन दोनों को हम सिर्फ वी एल का नाम देंगे. इन समवेयर इन टेक्स्ट बुक द डिस्क्रिप्शन सेज वी आई, दैट इज वेंट्रल इंटरमीडिएट. तो वेंट्रल इंटरमीडिएट और वेंट्रल लेटरल दोनों एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के दो पहलू है. ठीक है. तो वी एल एंड वी आई इसको हम साथ में रखेंगे. ठीक है. और इसको टुकड़ा करना जरूरी है. वीपी. वीपी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वीपीएल एंड वीपीएम. वेंट्रो पोस्ट्रोलेटरल एंड वेंट्रो पोस्ट्रोमीडियल. ठीक है. योर असेंडिंग ट्रैक्स, सेंसरी ट्रैक्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड
When they ascend upwards, they are terminated here. VPM में हेड एंड नेक और टेस्ट के फाइबर आते हैं. VPL में बाकी सब प्रोप्रायोसेप्टिव फाइबर्स आते हैं फ्रॉम लोअर ट्रंक एंड लोअर लिम्ब. ठीक है, हेड एंड नेक के फाइबर VPM में जाएंगे और हेड एंड नेक के नीचे पूरे बॉडी के फाइबर VPL में जाएंगे. So VPL and VPM. ओके. और क्या बचा? अब हम इस व्हाइट मैटर में जाते हैं. इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना इज just like reticular formation, it is group of white matter, but इस group of white matter में in between there are some diffuse nuclei, that is called reticular formation और reticular nuclei. आपको पता है रेटिकुलर न्यूक्लियाई अगर डिफ्यूज है तो हम नाम नहीं देते, बट अगर रेटिकुलर न्यूक्लियाई भी एग्रीगेट हो जाते हैं कहीं कहीं डिफाइन कर सकते हो ऐसा ग्रुप अगर रेटिकुलर का बनता है, जैसे यहाँ दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है, दैट इज रेटिकुलर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इज गिवन नेम. तो इसको हमने नाम दिया सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस, CM. सेंट्रोमीडियन इज लोकेटेड इन इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना, इट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन. ठीक है, ऐसा ही एक टुकड़ा यहाँ पे, इसको मीडियल वेंट्रल भी बोलते हैं. अब ये याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, चलेगा. CM को याद रखिए क्योंकि वो CM है. ओके. चलिए अब थोड़े से कनेक्शन हो जाए. अगर ये ओरिएंटेशन आपके पास है तभी आप कनेक्शन की बात कर सकते हैं. चलिए कुछ यहाँ पे ही बोल देते हैं, बाकी हम टेबल में जाएंगे तो पेजा घूमेगा. कुछ स्ट्रक्चर आपको इमेजिन करने हैं यहाँ पे. चलो यहाँ से शुरू करते हैं. हियर यू हैव मिड ब्रेन. ओके. अपर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, डोर्सल पार्ट, MGB, LGB. इमेजिन इंफीरियर ब्रेकियम. यहाँ पे हाँ, इंफीरियर ब्रेकियम एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस. यहीं पे तो था, अभी अभी तो हमने देखा था ये चीज़ें. इंफीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर ब्रेकियम, MGB, पार्ट ऑफ ऑडिटरी पाथवे. क्लियर. सुपीरियर कॉलिक्यूलस, सुपीरियर ब्रेकियम, LGB, पार्ट ऑफ विजुअल पाथवे. क्लियर. सो इन दोनों को आप वहाँ पे इमेजिन करिए. इंफीरियर ब्रेकियम, इंफीरियर कॉलिक्यूलस, MGB, दैट मीन्स यहाँ पे ऑडिटरी पाथवे आया. सुपीरियर कॉलिक्यूलस, सुपीरियर ब्रेकियम एंड LGB, तो यहाँ पे विजुअल पाथवे आया. सो ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक काइज्मा पिट्यूटरी के आगे, फिर ऑप्टिक ट्रैक, और ऑप्टिक ट्रैक आता है यहाँ पे LGB में. और यहाँ पे यू हैव टू चॉइस. इफ यू गो टू प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई यू विल हैव विजुअल रिफ्लेक्स पाथवे. इफ यू गो upwards in internal capsule you will have cortex, visual cortex, area 17, 18, 19. So this is termination or relay station of optic pathway. From here you will have two choice, either you go to cerebral cortex or you go to EW nucleus via pretectal. ये कहाँ से आया? तो अगर आप नीचे से याद करो, वेंट्रल एंड डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियाई, ट्रेपिजॉइड बॉडी, ट्रेपिजॉइड न्यूक्लियाई, ऑपोजिट साइड, असेंडिंग लेटरल लेमनिस्कस, एंड लेटरल लेमनिस्कस में से इंफीरियर कॉलिक्यूलस, फिर इंफीरियर ब्रेकियम और MGB. नाउ दिस टू हैव टू पार्ट्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल. यहाँ से जो फाइबर जाते हैं दैट इज सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड गोइंग टू temporal lobe of cerebrum. From here you have retrolentiform part of internal capsule
गोइंग अपवर्ड्स इन विजुअल कॉर्टेक्स। ये दो वर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि वो इंटरनल कैप्सूल में वापस आएंगे। और चलिए यहाँ पे आते हैं, VL एंड VI, दिस रिसीव्स फाइबर्स फ्रॉम सेरिबेलम। सेरिब्रम तो यहाँ ऊपर है, ठीक है, तो उसको जो नज़दीक पड़ेगा वो पकड़ेंगे। सेरिबेलम कहाँ है? यहाँ अपना ब्रेन स्टेम है, और उसके पीछे समवेयर हियर यू हैव सेरिबेलम हियर, एंड सेरिबेलम, इसके 4 ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोज एंड फास्टिजियल। तो वहाँ से सेरिबेलर न्यूक्लियाई में से कनेक्शन आएगा, कुछ रेड न्यूक्लियस के साथ जुड़ेगा और कुछ डायरेक्टली चला आएगा। दैट इज कॉल्ड सेरेबेलोथैलेमिक कनेक्शन फ्रॉम सेरिबेलम टू थैलेमस। कहाँ पे? VL एंड VI। दिस एरिया रिसीव्स एफरेंट्स फ्रॉम सेरिबेलम। कुछ याद नहीं आता तो सिर्फ सेरिबेलम पकड़िए, और कुछ याद आ रहा है तो डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई ऐसा वर्ड यूज कीजिए, और याद आ रहा है तो dentate and emboliform group of nuclei. So these nuclei, they are sending dentato-cerebellar fibers, dentato-rubrocerebellar fibers. तो ये वर्ड्स जो है वो यहाँ पे आते हैं, dentatorubral and dentatorubrothalaamic connection in VL and VI nucleus। बहुत हो गया। VA group, VA from GP and SN। GP means globus pallidus, SN means substantia nigra। ये हो गया अपना बेसल न्यूक्लियाई ग्रुप। इसका सेपरेट डायग्राम है। यहाँ पे ग्लोबस पैलिडस होता है और वहाँ से डायरेक्टली फाइबर घुसते हैं VA। ग्लोबस पैलिडस एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा सेंड्स फाइबर्स टू VA ग्रुप। फिर यहाँ पे एक और रेटिकुलर फॉर्मेशन हुआ, चलिए उसको छोड़ते हैं क्योंकि डायग्राम में कुछ दिया नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है, नहीं दिखता वो नहीं बिकता है। सो जो दिखता है उसको हम बेचेंगे। LD एंड LP, LD एंड LP मुझे देखना पड़ेगा। LD का डायग्राम है, चलिए पहले फंक्शन देख लेते हैं फिर टुकड़े करेंगे। दिस इज important from physiological point of view also। See VA and VL, it is called motor relay group, ठीक है, it controls motor fibers। so इसके जो इफरेंट्स जाएंगे वो सेरिब्रल कॉर्टिकल एरिया के मोटर एरिया में जाएंगे। यू रिमेंबर सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस के आगे प्री सेंट्रल गायरस और पीछे पोस्ट सेंट्रल गायरस। सो प्री सेंट्रल गायरस इज योर मोटर ग्रुप, मोटर एरिया, पोस्ट सेंट्रल इज योर सेंसरी एरिया। सो मोटर रिले विल गो टू प्री सेंट्रल गायरस, sensory relay will go to post central gyrus। so motor relay, that is VA and VL, and sensory relay is your VP। ओके, तो बीच में जो फंस गया that is VL and VI, वो सेरिबेलम से आएगा और ऊपर मोटर एरिया में ही जाएगा, यहीं पे जाएगा इसी के साथ, पर थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि जो स्पाइनल कोड का मोटर इनपुट है वो डेडिकेटेड, उसका जो एरिया है 312, और एरिया नंबर 6 जो उसके थोड़ा सा आगे है, प्री सेंट्रल गायरस से थोड़ा सा आगे, वहाँ पे सेरिबेलम के फाइबर जाएंगे।
सेरिबेलर के फाइबर आए कहाँ पे, VL एंड VI, और वहाँ से निकल के 6 एरिया नंबर 6 में जाएंगे। चलिए पहले पूरा देख ही लेते हैं, टेबल का काम ख़त्म, फिर जाएंगे डायग्राम में, दोनों टेबल ख़त्म करते हैं। तो ये तो हो गया। अब ये बचा LD एंड LP, जो भी हमने देखा था, that is sensory modulator group. That means it will modulate, it will modify sensory afferents. So ALD, ALP and pulvinar, ऊपर के तीनों ALD, ALP and pulvinar, they will relay, they will go, they will send efferents to sensory modulator area. When you will learn cerebral cortical area, you will have reference of all these thalamic nuclei, क्योंकि थैलेमस बहुत बड़ा गेटवे है, इट इज़ अ लार्जेस्ट गेटवे ऑफ ऑल इनपुट्स फ्रॉम होल ब्रेन, होल CNS, उसका बहुत बड़ा दरवाज़ा इट इज़ थैलेमस। तो अगर थैलेमस में कहीं पे भी कुछ भी ब्लॉक होता है तो यू हैव वेरी लार्ज problems, very broad, very dynamic problems. Limbic group, that is your limbic system. तो जो जिसके हमने टुकड़े नहीं किए, येलो वाला और ग्रीन वाला, एंटीरियर न्यूक्लियस एंड मीडियल न्यूक्लियस, जिसके टुकड़े हमने नहीं किए, दैट बिलोंग्स टू लिम्बिक ग्रुप। सबसे डिफिकल्ट और सबसे इमोशनल ग्रुप, दैट इज लिम्बिक ग्रुप, जो मेमोरी में भी काम करता है, तो उसके टुकड़े नहीं करते। एंटीरियर एंड मीडियल ग्रुप, दैट इज लिम्बिक ग्रुप। और बचे जो जिसको हम कुछ नहीं बोलते, वो नॉन स्पेसिफिक थैलेमिक ग्रुप है, दैट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। इंट्रालेमिनार, मिडलाइन एंड रेटिकुलर, दे बिलोंग टू नॉन स्पेसिफिक ग्रुप। जो कुछ नहीं आता उसको हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये हेडिंग तो पढ़ाई है, keywords. Okay, so VA, VL belongs to motor relay, VPL, VPM, MGB, LGB sensory relay, LD, LPP sensory modulator, anterior and medial group, limbic group, और बाकी बचे रेटिकुलर, दैट इज नॉन स्पेसिफिक ग्रुप। इसी टेबल को कनेक्शन की भाषा में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है। VPL, VPM स्पाइनल कॉर्ड में से जो बड़े ट्रैक्स आए, मीडियल लेमनिस्कस एंड स्पाइनल लेमनिस्कस, ये दो जाएंगे VPL में, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस जाएगा VPM में। ठीक है, ये हो गए एफरेंट्स। चलो पहले एफरेंट ही देख लेते हैं। VA लिम्बिक सिस्टम से आएगा, तो लिम्बिक सिस्टम में से जो आएगा वो वाया दिस कॉम्प्लेक्स। VL और VI सेरिबेलम में से आएगा, तो ये रहा अपना सेरिबेलम। बाकी आता है तो लिखो, नहीं आता है तो इस बड़े भाई साहब को लिखो। MGB, LGB आपको ऑलरेडी पता है। इस पूरे टेबल को अगर लिखना है, शुरू करना है, तो हम उल्टे से करेंगे, इजी चीज़ें पहले लिखेंगे। MGB, LGB ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवे, फिर हम लिखेंगे सेरिबेलम को, VL, VI, और बाकी जो बचा है उसमें से VA दैट इज फ्रंटल लोब एंड VPL, VPM वो स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आता है वो ही लिख पाएगा, नहीं आता है तो इसको छोड़ दो और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड लिख दो, चलेगा। एफरेंट्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, एफरेंट्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, बहुत बड़ा वर्ड हो गया, सच्चा भी तो है, कोई गलत भी तो नहीं बोल सकता। और ये तो आप एफरेंट्स लाए, ईफरेंट जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो जब हम सेरिब्रल कॉर्टिकल एरिया पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ये जो है। ठीक है, जिसको आता है वो पढ़ ले। ऑडिटरी एरिया 41, 42, विजुअल एरिया 17, 18, 19, मोटर एरिया 4, 6, प्री मोटर एरिया 6, 8 एंड प्री सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल दैट इज 3, 1, 2। ये समझने के लिए आपको कॉर्टिकल एरिया आने चाहिए। ठीक है,
तो जिसको जितना हजम होता है उतना ही करें। चलिए इसको हम डायग्राम में वापस देखते हैं। ठीक है, एंटीरियर ग्रुप, मीडियल ग्रुप, लेटरल ग्रुप। कहाँ से शुरू किया था? इजी, यहाँ से। ऑडिटरी एफरेंट्स एमजीबी, विजुअल एफरेंट्स एलजीबी। ठीक है, असेंडिंग स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्स, 4 लेमनिस का यहाँ पे ड्रॉ कर दो। एमटीएसएल, मीडियल, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल, लेटरल। ठीक है, तो मीडियल एंड तीसरा स्पाइनल, मीडियल एंड स्पाइनल दोनों मिलके जाएंगे बीपीएल में। ट्राइजेमिनल अकेला जाएगा वीपीएम में। तो दिस इज ट्राइजेमिनल एफरेंट, दिस इज एमएलएफ एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। ओके, स्पाइनल लेमनिस्कस, मीडियल लेमनिस्कस एंड स्पाइनल लेमनिस्कस दोनों यहाँ पे जाएंगे। ये वीएल एंड वीआई सेरिबेलम से आएगा। वीए तो सब्सटेंशिया नाइग्रा ग्लोबस पैलिडस वहाँ से आएगा। और लिम्बिक सिस्टम के यहाँ पे अपना लिम्बिक सिस्टम है, उसके 2 पार्ट पड़ जाएंगे। लिम्बिक सिस्टम में से कुछ चीज़ें यहाँ से आएगी, कुछ चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पे आएगी। जो इम्पोर्टेंट और असली चीज़ें हैं वो डायरेक्टली जाएगी, बाकी सब यहाँ पे आएगी। और बचा कुचा जो है दैट इज़ योर नॉन स्पेसिफिक रेटिकुलर न्यूक्लियाई। दिस इज़ रेटिकुलर, दिस इज़ रेटिकुलर, और उसमें से ये बड़े भाई साहब सीएम दैट इज सेंट्रोमीडियन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आया फ्रंटल लोब से लिम्बिक सिस्टम के एफरेंट। यहाँ पे भी लिम्बिक सिस्टम ही है, बट इसका हाइपोथैलेमस जो है अपना, हाइपोथैलेमस के मोस्ट ऑफ फाइबर्स यहाँ पे जाएंगे, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। तो जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे तो इतनी ही तकलीफ होगी, तो उस वक्त आप इस टुकड़े को याद रखिएगा। दैट्स ऑल। सी VL, दिस इज LD, सॉरी LD एंड LP, और P, इन दोनों तीनों को साथ में देखो, LD LP एंड P। ठीक है, ये हो गया अपना सेंसरी मॉड्यूलेटर ग्रुप। VL एंड VI ये कहाँ से आया? सेरिबेलम से आया। सेरिबेलम से कहाँ गया? इन्फ्लुएंसिंग मोटर एरिया। ये है सेंट्रल सल्कस, दिस इज पोस्ट सेंट्रल गायरस, दिस इज प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, तो ये सेंसरी मॉड्यूलेटर और ये मोटर मॉड्यूलेटर। तो मोटर मॉड्यूलेटर सेरिबेलम से आया, सेंसरी मॉड्यूलेटर यहाँ मीडियल ग्रुप से आया, और यहाँ एंटीरियर ग्रुप और मीडियल ग्रुप में अपना सब्सटेंशिया नाइग्रा और दिस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस वहाँ से फाइबर आए। ठीक है, ये तो पता ही है एमजीबी एलजीबी। एमजीबी से फाइबर गए ऑडिटरी कॉर्टेक्स टेम्पोरल लोब, एलजीबी के फाइबर गए विजुअल कॉर्टेक्स ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, you should write name of lobes, area and number 17, 18, 19 here, 41, 42, 22 here। ऐसे ही कुछ चीज़ यहाँ पे दिखाई है। मेमिलरी बॉडी, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट गोइंग टू एंटीरियर न्यूक्लियस, और यहाँ से फाइबर जाएंगे सिंगुलेट गायरस में। तो ये हो गई आपकी पापेज सर्किट। जब भी आप पापेज सर्किट पढ़ो तो ये टुकड़ा उसमें आएगा, मेमिलरी बॉडी, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस और सिंगुलेट गायरस। फिर अपना कोडेट न्यूक्लियस जो है हेड ऑफ कोडेट वहाँ पे जाएगा सीएम में। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन में, यही रेटिकुलर है तो ये भी रेटिकुलर में जाएगा। कहाँ पे? ब्रेन स्टेम रेटिकुलर न्यूक्लिया। चलिए बहुत हो गया। अब थैलेमस के जो फंक्शन हुए, जो हमने यहाँ पे ग्रुप दिया था,
कनेक्शन तो हमने देख लिए। फंक्शन के लिए आपको यही टेबल हमेशा याद रखना है, ऑलवेज। मोटर रिले, सेंसरी रिले, मोटर मॉड्यूलेटर, सेंसरी मॉड्यूलेटर, लिम्बिक और नॉन स्पेसिफिक, सबके अपने अपने फंक्शन हैं। ठीक है, तो 2 मोटर हो गए, 2 सेंसरी हो गए, 2 लिम्बिक और मेमोरी के हो गए, और एक ये नॉन स्पेसिफिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज लार्जेस्ट रिले स्टेशन ऑफ होल ब्रेन। इट इज ग्रेट सेंसरी गेटवे। द वर्ड यूज्ड इज ग्रेट सेंसरी गेटवे। देखिए, ग्रेट इंटीग्रेटिंग सेंटर, all sources of all brain they are diversified from thalamus। ठीक है, तो फंक्शन इज इंटीग्रेशन इन रिले ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इम्पल्सिस एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी। ये आपको याद रखना है। ऑल्फैक्टरी के कनेक्शन आते हैं, बट इट इज वाया लिम्बिक सिस्टम, इट इज इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट ऑल्फैक्टरी जाता है सीधा ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में, इट डज नॉट गो इन थैलेमस। तो ऑल्फैक्टरी के सिवा एवरी सेंसेशन विल पास फ्रॉम थैलेमस। ठीक है, ऑल्सो असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग पाथवे। जो रेटिकुलर ग्रुप हमने वाई शेपेड लेमिना देखा, उसमें असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के कनेक्शन आते हैं। दैट मीन्स पूरे ब्रेन को सतत अवेक रखना। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का प्राइमरी काम क्या है? प्राइमरी टास्क इज टू कीप द होल सीएनएस अवेक। अपने गेड़िया सर बोलते हैं पंचायत सभा। इट इज चुगली सेंटर, इट इज न्यूज, इट इज मीडिया सेंटर, जो पूरे पब्लिक को हमेशा जागते रहो बोलती है। तो जब तक ये जागता है तब तक बंदा पूरे दिन जगता रहता है। जैसे ही ARAS को इनहिबिट करेंगे, न्यूरॉन्स थक जाएंगे, तो हम थक जाएंगे और हम सो जाएंगे। So for wakefulness and alertness, reticular activating system acts along with thalamus. And when it is inhibited, thalamus is not working, you will sleep. तो इसका डायरेक्ट रिलेशन हुआ मूड के साथ। मूड मीन्स मूड। ठीक है, तो मूड कहाँ से बनता है? इट इज फ्रॉम इमोशन, मेमोरी एंड फीलिंग्स। सो उसके लिए अपनी लिम्बिक सिस्टम काम करती है। तो लिम्बिक सिस्टम का जो पाथवे है, दैट इज पासिंग फ्रॉम एंटीरियर एंड मीडियल ग्रुप ऑफ थैलेमस, येलो एंड ग्रीन वन। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो अपना मूड नहीं बनेगा। ठीक है, थैलेमस इज अफेक्टिंग, participates in affective reaction. Affection means mood. Affection, कुछ भी पसंद आना, नहीं पसंद आना, that is called affection. जैसे प्यार, मोहब्बत, everything. ठीक है, that starts from here. तो इन सब को अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो क्लिनिकल एनाटॉमी बनती है। इट मीन्स अगर लीजन ऑफ थैलेमस होता है तो जिस भी न्यूक्लियस का लीजन होगा वो फाइबर काम नहीं करेंगे। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस आर्टरी की, थैलेमोजेनिकुलेट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, इट सप्लाइज लॉट ऑफ न्यूक्लियाई। अगर ये ओक्लूजन होता है तो VP काम नहीं करेगा, इंट्रालेमिनार काम नहीं करेगा, इंटरनल कैप्सूल काम नहीं करेगा, और पीछे अपना जो सब थैलेमस है वो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस पूरे सिंड्रोम को बोलते हैं थैलेमिक सिंड्रोम ऑफ डेजेरिन रोजी। ये किसी का नाम है। थैलेमिक सिंड्रोम इज वास्कुलर ओक्लूजन और इस्चियमिक इंजरी by thalamogeniculated artery and it gives rise to a large group of symptoms। ठीक है, इस सिंड्रोम को बोलेंगे थैलेमिक ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन दैट मीन्स जब भी जो भी सेंसेशन लाते हैं हम, वो सब हाइपर और एग्जाग्रेटेड हो जाते हैं। सेंसेशंस आर एग्जाग्रेटेड। सो जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है वो परवर्टेड कहलाता है।
ठीक है, जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है वो टॉक्सिन बन जाती है। तो परवर्टेड एंड ओवर रिएक्टेड सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड थैलेमिक ओवर रिएक्शन और थैलेमिक सिंड्रोम। तो इसका एक एग्जांपल है इमोशनल ओवर स्टेबिलिटी, अननेसेसरी लाफिंग, अननेसेसरी क्राइंग। ठीक है, जो म्यूजिक अच्छा लगता है वो म्यूजिक बुरा लगने लगता है, ये सब बहुत ही डरावना है। ठीक है, दैट इज थैलेमिक सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम का एक छोटा सा पीस अगर आप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड थैलेमिक हैंड, ओनली मोटर मॉड्यूलेटर इज अफेक्टेड। ठीक है, तो थैलेमिक हैंड को अगर आप देखते हो तो अपनी अर्ब्स पाल्जी का जो हैंड है उसको थोड़ा सा फ्लेक्स कर दे, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और रिस्ट को फ्लेक्स कर दे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, तो अपना थैलेमिक हैंड बन जाता है। ठीक है, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन थैलेमिक हैंड एंड अर्ब्स पाल्जी। और जिसको भी न्यूरो में जाना है उसको ये सब आना चाहिए, उसके फंक्शन आएंगे तभी उसके डिसफंक्शन आएंगे। बायोकेमिस्ट्री में जाओ और ये चीज़ पढ़ो, कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो कोर्साकॉफ साइकोसिस होता है और उसका सीधा कनेक्शन होता है मेमोरी के साथ, एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के साथ, तो वो भी आप देख लो। और ये पापेज सर्किट का एक पार्ट है, तो अगर एंटीरियर और मीडियल ग्रुप को कुछ हो जाता है तो अपनी पापेज सर्किट काम नहीं करेगी, तो मेमोरी भी काम नहीं करेगी। मेमोरी कौन सी? दैट इज रिसेंट मेमोरी। ठीक है, और एक होता है पार्किंसोनिज्म जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो पार्किंसोनिज्म के जो भी ट्रेमर है उसको अगर VL को अगर हम काट देते हैं, VL ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है। कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो आई रिकमेंड टू रिवाइज एवरीथिंग। So lecture is over. If you have any question, you can ask. Thank you.